skill building effort, particularly in light of Vision 2047, which seeks to stabilize India as a developed initiative and sustainable. The vision Viksit Bharat at the rate 2047 envision India's transformation into a developed nation by 2047. The ambitious goal introduced by PM Narendra Modi G covers in various dimensions of development. Education emerges the cornerstone for these transformative journeys, serving a foundation for achievement and progress. The proceeds NEP 2020 and to increase educational spending to 6% of GDP, achievable only through well-planned efforts. Sustainable Development Goal (SDG) adopted by the UN 2015 lists quality education goal for as one of the 17 target to end poverty, protect the planet and promote. This paper aims to analyze the measures taken and challenges faced in education sector towards achieving Viksit Bharat at the rate 2047. Introduction में we now need to focus on the creation of a developed India on 11th December 2023. The Prime Minister of India, Sri Narendra Modi, launched the Develop India at the rate 2047 campaigning of the youth of India. This campaigning of youth of India, this campaigning has been launched to make India a developed nation in the 100th year of India's independence in developing countries. Education is the foundation of progress and perspective. The role of higher education institution of curricular PM Modi has stated the prestigious universities like Kashi Hindu University, Lucknow University and Visva Bharati played a significant role in the Indian independent movement. In the last 10 years, a large number of ground-breaking initiatives has been undertaken by the Government of India. The nation has need to be discussed by academic community of researchers, youth and students. This includes flagship programs such as the National Education Policy 2020, PM Sri Schools, DAC schemes and so far. Education scheme initiatives and policies Viksit Bharat at the rate 2047. Some education schemes, initiatives and policies mentioned by the Government of India are the follows. First, education context में the National Education Policy 2020 has in a new era in the Indian education system, laying a strong foundation for development in the crucial sector under the initiative for Viksit Bharat at the rate 2047. NEP 2020 benefits students with regards to vocation training, like life skills and vocational education and improving teaching standards. सर्व शिक्षा अभियान SSA, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान RUSA, पोषण 2.0, PM USHA, Swayam Prabha are few initiatives for such a type of programs. Skill development में India's gross enroll ratio GER has made a significant progress in recent years. The GER comprises the enrollment in a specific levels of education to the population of age group which is most age appropriate for the last level of education. The GER of primary education experienced a growth of 101.3% in 2018 to 104.8 in 2021-22. As so far secondary education, the GR rate 39.86 in 2021. The GR at the higher secondary level exhibited a significant increase, reaching 2021 50.14% in 2018. Third, women empowerment in India. The increasing empowerment of women in India, known as Nari Shakti, in transforming the country
scale in recent years. Women have broken barriers and made society more equitable and inclusive. सुकन्या समृद्धि योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पीएम मुद्रा, पीएम मातृ वंदना योजना, बालिकी समृद्धि योजना. इंडिया एंड डेमोस्ट्रेटेड क्वांटम लीप कैपेबिलिटीज. इसके अंदर स्पोर्ट्स के अंदर अभी इंडिया ने 100 मेडल इन एशियन गेम्स एंड 41 मेडल इन ओलंपिक्स और चंद्रयान 3.0 लॉन्च किया है, जो कि साउथ पोल पर पहुंचने वाला इंडिया वर्ल्ड में पहली कंट्री है. इसके अंदर लैंडर के साथ साइंस से पेलोड थे, जिसके अंदर रंबा, चेस्टा, ISA, LRA, एपेक्स और IBS और सेफ. और इंडिया गोल्ड स्टैंडर्ड ग्लोबल स्टैंडिंग के अंदर इंडिया ने 220 मीटिंग्स इन 60 सिटीज एंड 28 स्टेट एंड यूटीज के अंदर की थी. और ये हिस्ट्री के अंदर G20 के हिस्ट्री के अंदर बहुत बड़ा अचीवमेंट है. इंडिया लीडिंग इन द वर्ल्ड एजुकेशन चैलेंज एंड विकसित भारत 2040. अब किसी को क्रॉस क्वेश्चन करना है क्या? 2 मिनट का समय है. अपना संक्षिप्त पत्र वाचन करें 2 या 3. अभी इनके पेपर में 2-3 शब्द आए थे. अमन जेटली ऐसे चलता है क्या? शोध पत्र साथ लेके आया. नेक्स्ट पेपर के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ अभिषेक सैनी. सम्मानित मंच एवं विद्वान भोजन, मैं भारतीय ज्ञान प्रणाली के आधारभूत तत्व एवं मूल्यवर्ग साहित्य पर शोध पत्र वाचन कर रहा हूँ. भारतीय ज्ञान परंपरा जो अद्वितीय ज्ञान और प्रज्ञा की प्रतीक है, जिसमें भारतीय संस्कार, दर्शन, आदर्श, भक्ति, नैतिकता निहित है. भारतीय ज्ञान प्रणाली में प्राचीन जीवन मूल्य, पंचमहायज्ञों, भारतीय आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति, भारतीय शिक्षा पद्धति, वैदिक ज्ञान, शिल्पकला, संगीत, खगोल, भूगोल, अनुसंधान, कर्मकांड इत्यादि का विशिष्ट संयोजन है. भारतीय ज्ञान परंपरा द्वारा सिंचित भारतीय मूल्यों एवं नीतियों का सीधा प्रभाव साहित्य में भी परिलक्षित होता है. भारतीय ज्ञान परंपरा ज्ञान स्वरूप है, जो कि एक नित्य नूतन क्रियात्मक अनुसंधानों का बढ़ता हुआ विशाल चक्र है. यह ज्ञान रूपी चक्र अपने भीतर सैकड़ों सूर्य के प्रकाश के समान ज्ञान को प्रवाहित और प्रसारित करता है. भारतवर्ष में शिक्षा एवं ज्ञान विरासत के रूप में चलते आ रहे हैं. भारतवर्ष की यह अनुपम एवं पावन धरा देवभूमि के रूप में जानी जाती है, जो कि अतुल्य ज्ञान का भंडार है. भारतवर्ष की यह भूमि उन्नत, गतिशील, सृजनशील एवं नवाचारी है, जो ज्ञान का विस्तार एवं अनुसंधान निरंतर रूप से करती रही है. इसी भारतीय ज्ञान प्रणाली के आधारभूत तत्व क्या हैं, जिन पर भारतीय ज्ञान प्रणाली निरंतर संचालित हो रही है? भारतीय ज्ञान परंपरा प्रसिद्ध एवं सर्वग्राही है, क्योंकि भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता विकसित, समृद्ध एवं व्यवस्थित रही है. भारतीय ज्ञान प्रणाली एवं भारतवर्ष एक दूसरे की पूरक हैं, जो इन्हें पूर्ण रूप से निर्मित एवं विकसित करते हैं. भारतीय ज्ञान प्रणाली का विश्व पर अमिट प्रभाव है. भारतीय ज्ञान प्रणाली की विशिष्ट संरचना इसे रोचक और प्रभावी बनाती है. भारतीय ज्ञान प्रणाली का यह भिन्न भिन्न तत्वों से मिलकर बना है, जो इसे संचालित एवं प्रकाशित करते हैं. भारतीय ज्ञान प्रणाली के आधारभूत तत्वों में सर्वप्रथम वेद एवं उपनिषद है. भारतीय ज्ञान प्रणाली का प्रमुख आधार वेद एवं उपनिषद है, जिसके अंतर्गत ज्ञान का रूप, स्तर, प्रकार की विशिष्टता भी निहित है. वेद, जो की संख्या में 4 है, इनमें ऋग्वेद सबसे प्राचीन है. अन्य 3 वेद यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद हैं. उपनिषद की भाषा भी संस्कृत है और प्रत्येक उपनिषद किसी न किसी वेद से जुड़ा हुआ है. इन्हें श्रुति ग्रंथि भी कहा जाता है. दूसरा आधारभूत तत्व है संस्कृत भाषा. देववाणी की संज्ञा से अधिक संस्कृत भाषा भारतीय ज्ञान प्रणाली का महत्वपूर्ण आधार है, क्योंकि भाषा के बिना विचार एवं भावों का आदान प्रदान असंभव हो जाता है. भारतीय ज्ञान प्रणाली की सरिता संस्कृत रूपी नीति के द्वारा अविरल बहती रही है. वैदिक संस्कृत एवं लौकिक संस्कृत के 2 रूपों में विभक्त हिंदी की जननी संस्कृत भाषा अपने वैज्ञानिक एवं परिवारजित रूप में विद्वता का परिचय रही है. तीसरा आधारभूत तत्व है गुरु शिष्य परंपरा.
तत्कालीन ज्ञान प्रणाली में गुरुकुल के माध्यम से शिक्षा प्रदान की जाती थी। गुरुकुल वह स्थान होता था जहाँ ऋषि आपसे महर्षि समय सर से किसी का कोई प्रश्न हो? नेक्स्ट श्रीमान गोपाल लाल धेरू जी को मैं आमंत्रित करता हूँ कि आप अपना पत्र वाचन करें। आपके पत्र वाचन का विषय है साहित्य, भाषा और स्वदेशी भारतवर्ष, ज्ञान और बुद्धि की भूमिका। माँ वीणा पाणी को वंदन नमन। मंचासीन शिक्षाविदों को प्रणाम। मेरे समक्ष बैठे सभी शिक्षाविदों को नमन, शोधार्थियों को नमन। मेरा शोध का विषय है साहित्य, भाषा और स्वदेशी ज्ञान, भारतवर्ष, ज्ञान और बुद्धि की भूमि के रूप में मैं अपने विचार रखना चाहता हूँ। भारत को प्राचीन काल से ही ज्ञान और बुद्धि की भूमि के रूप में जाना जाता है। इसका साहित्यिक और भाषाई स्वदेशी ज्ञान परंपरा के रूप में मानवता के हर पहलू को समृद्ध करती रही है। वे उपनिषद, रामायण, महाभारत और भक्ति साहित्य के रूप में भारतीय साहित्य में ज्ञान और नैतिकता की गहरी जड़ों को दर्शाने में समृद्ध रही है। इसी के साथ विभिन्न तथ्यात्मक श्लोक अत्सोमा सद्गमय कर्मण्येवाधिकारस्ते जैसे श्लोक भारतीय जीवन दर्शन और मानवीय मूल्यों का प्रतीक रहे हैं। इनमें आंदोलन के रूप में सरल भाषा में गूढ़ विचार प्रस्तुत करते हुए जन सामान्य तक अपने ज्ञान को आगे बढ़ाने में समृद्धता रही है। इसी संदर्भ में स्वदेशी ज्ञान में आयुर्वेद, योग, गणित और खगोल शास्त्र जैसे क्षेत्रों में विश्व को दिशा दिखाई है। चरक संहिता, पतंजलि, योग शास्त्र और आर्यभट्ट के कार्य भारतीय ज्ञान के वैश्विक प्रभाव को दर्शाने में समृद्ध रहे हैं। टिकाऊ कृषि के रूप में पर्यावरण संरक्षण और जल प्रबंधन की पारंपरिक प्रणालियां भी आधुनिक युग में प्रासंगिक रही है। भारत की भाषाई विविधता इसी सांस्कृतिक धरोहर का अनूठा एक पक्ष रहा है। संस्कृत, हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं और बोलियों ने ज्ञान और साहित्य के समृद्ध भंडार को आगे बढ़ाते हुए इन विचारों और अपने तथ्यात्मक बिंदुओं को जन्म दिया है। कालिदास, तुलसीदास और रविंद्रनाथ टैगोर जैसे अनेक साहित्यकारों की कृतियां भारतीय संस्कृति का गौरव भी रही है। यह भाषाई विविधता और विविधता में एकता की एक मिसाल को प्रस्तुत हमारे समक्ष पेश करती है। शोध पत्र के माध्यम से भारतीय साहित्य, भाषा और स्वदेशी ज्ञान परंपरा की इसी महत्ता का विश्लेषण हम करते हैं। इसके संरक्षण और वैश्वीकरण की चुनौतियां भी हमारे समक्ष चर्चा का विषय रही है। भारतीय ज्ञान प्रणाली मानवता को नैतिकता के रूप में आध्यात्मिकता और टिकाऊ जीवन का मार्गदर्शन प्रदान करने में आगे उत्तरोत्तर मार्गदर्शन के रूप में रही है। यह न केवल भारत की सांस्कृतिक पहचान है बल्कि वैश्विक समाज के लिए अमूल्य धरोहर के रूप में है। भारत को ज्ञान और बुद्धि की भूमि के रूप में इसी संदर्भ में जिसकी प्राचीन साहित्य और भाषाई विविधता और स्वदेशी ज्ञान जैसी परंपराएं वैश्विक संस्कृति के केंद्र के रूप में आगे बढ़ते हुए भारतीय प्राचीन दर्शन के रूप में विज्ञान और गणित और चिकित्सा के रूप में हमें महत्वपूर्ण योगदान देती रही है। भारत को ज्ञान और बुद्धि की भूमि के रूप में भी इसी संदर्भ में कहा जाता है कि भारत प्राचीन साहित्य, भाषाई विविधता और स्वदेशी ज्ञान की परंपराओं के रूप में हमारा सांस्कृतिक केंद्र भी रहा है। प्राचीन भारत में दर्शन, विज्ञान और गणित जैसे चिकित्सा महत्वपूर्ण इन्होंने योगदान दिया है। भारतीय साहित्य जैसे वेद, उपनिषद और भक्ति साहित्य के ज्ञान और बुद्धि का सर्वोच्च स्थान रखने वाले रहे हैं। ये साहित्य कृतियाँ न केवल सांस्कृतिक पहचान का आधार रही है बल्कि जीवन के गूढ़ अर्थों, मानवीय मूल्यों और नैतिकता को जीवित रखने वाले दस्तावेजों के रूप में भी माने जाते हैं। भारत की भाषाई विविधता भी इसी सांस्कृतिक समृद्धि का महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। हिंदी, तमिल, तेलुगु, मराठी और बंगाली जैसी भाषाएं भारत की सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा मानी जाती रही है।
भारत में साहित्य ज्ञान की इसी परंपरा को सदियों से पुरानी मानी गई है, जो वेदों से लेकर भारत आधुनिक साहित्य तक फैली हुई है। यह ज्ञान परंपराएं और दर्शन के विविध पहलुओं को हमारे समक्ष श्रुति हुई प्रदर्शित होती है, जिसमें जीवन, ब्रह्मांड और नैतिकता और अस्तित्व के अर्थ की चर्चा भी इसमें की गई है। इसके साथ साथ प्राचीन भारतीय साहित्य में महाकाव्यों जैसे रामायण और महाभारत, जो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा के अंतर्गत संस्कृत में, वैदिक संस्कृत में वेद और उपनिषद के साथ साथ लौकिक संस्कृत में रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथों के माध्यम से जीवन में नैतिक मूल्यों और अस्तित्व के अर्थ की भी चर्चा इसमें हमें दृष्टिपात होती है। अमरी कबरी भार भ्रमरी मुखरी कृतम दूरी करो दुदुरितम गौरी चरण पंकजम। आज के इस सारस्वत अनुष्ठान के चेयरपर्सन डॉक्टर अशोक कुमार जी महिला, अतिरिक्त महामंत्री ABRSN, डॉक्टर आशुतोष जी पारिक, सह आचार्य संस्कृत विभाग, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर, और संचालन कर रहे भाई तोरण सिंह जी, और सभी विद्वान शोधार्थी, संकाय सदस्य और विद्यार्थी। मेरा विषय है संस्कृत वाङ्मय में चारित्र्योत्थान के सूत्र। जैसा कल बताया था, भारतम वायामृतम इति भारतम, जो प्रकाश में, जो ज्ञान के प्रकाश में जो रथ है उसको हम भारत कहते हैं। गायन्ति देवा किल गीतकानि धन्यास्तुते भारत भूमि भागे स्वर्गापवर्गास्पद मार्ग भूते भवन्ति भूयः पुरुषा सुरत्वात्। ये विष्णु पुराण का जो उद्गान है, वहां पर देवता भी इस भारत भूमि पर रमण करना चाहते हैं। हमारा अहोभाग्य है कि हमारा जन्म जो है भारत भूमि पर हुआ है। भारत भूमि देव वंदनीय है। संस्कृतम संस्कृतिश्च श्रेयसे समुपास्यता। संस्कृत और संस्कृति जो है कल्याण के लिए उसकी उपासना करनी चाहिए। एतद्देश प्रसूतस्य सकाशात् अग्र जन्मनः स्वं स्वं चरित्रम शिक्षेरन् पृथिव्यां सर्व मानवाः। आज बात करते हैं, कई विकसित देश हैं, लेकिन ज्ञान परंपरा में भारत हमारे यहाँ पर विश्व गुरु रहा है। यहाँ का दर्शन अलग रहा है, यहाँ की ज्ञान परंपरा अलग रही है। ये बड़ी विडंबना है कि हमने हमारी संस्कृति को, हमारी सांस्कृतिक परंपरा को भुला दिया है, और उसके जागरण के लिए इस प्रकार के सारस्वत अनुष्ठान का आयोजन करना पड़ रहा है। मैं विषय पे आता हूँ। संस्कृत वाङ्मय में चारित्र्योत्थान के सूत्र। आध्यात्मिक समुपासना में निरत भारत भूमि पर लब्ध जन्मा मनुष्यों ने संपूर्ण विश्व के मानवों को चरित्र की शिक्षा देकर भारतवर्ष की विश्व गुरुता को प्रमाणित किया है। चारु चरित्र की अजस्र स्रोतस्विनी में सुर भारती के अमर साहित्य का अनुपम अवदान है। चारित्र्योत्थान हेतु वैदिक और लौकिक संस्कृत वाङ्मय में नैतिक वचनों की महनीय मंदाकिनी अमंद रूप से अत्यावधि प्रवाहित हो रही है, जिसमें अवगाहन करके निस्संदेह आबाल वृद्ध वनिता चरित्रामृत का सुमधुर पान कर सकते हैं। आध्यात्मिकता, आदर्श जीवन पद्धति, मानवीय मूल्यों के संपोषण एवं प्राणी मात्र की हिताभिलाषा के कारण भारतवर्ष सकल विश्व में तिलकायमान है। सर्वेषामेव भूतानां प्रियम भारतम उत्तमम। संस्कृत वाङ्मय न केवल अपने कल्पना गौरव, भाव माधुर्य, वैचारिक औदात्य के लिए ही विख्यात है, अपितु हितसंधान,
चारित्र्योत्थानार्थ आचार शुद्धि, त्याग, शरणागत रक्षा, शुचिता, आदर्श मैत्री, परोपकार, नारी सम्मान, नैतिकता एवं मानवीय मूल्य निर्देश आदि के विशद विश्लेषण हेतु विश्व विस्तृत है। विश्व वाङ्मय में आदि ग्रंथ के रूप में प्रथित ऋग्वेद की सर्व प्राचीनता प्रमाणित है, क्योंकि इसमें भूत, वर्तमान और भविष्यकालिक ज्ञान की प्रतिष्ठा है। भूतम भाव्यम भविष्यम च सर्वम वेदात् प्रसिद्ध्यति। हमें आज मानव को, इंसान को इंसान बनाने के उपक्रम हेतु इस प्रकार के आयोजन करने पड़ रहे हैं। मनोर्भव जनया दिव्यम जन्म, इस वैदिक ऋचा में मानव को मननशील बनाने का सुमधुर समुपदेश समाहित है। इसी मंतव्य को संपुष्ट करते हुए कहा है कि मननशीलता से विवेक सम्मत कार्य निर्वहन ही मनुष्य का यथार्थ मनुष्य की संज्ञा से विभूषित करता है। मत्वा कर्माणि शिव्यति मनुष्य है। वैदिक वाङ्मय में विश्व के सभी मानवों को श्रेष्ठ बनाने का सुमनोहर आह्वान है। कृण्वन्तो विश्वमार्यम सर्वे भवन्तु सुखिनः की हितावह आशंसा के रूप में भारतीय मनीषा आदि काल से ही विश्व कल्याण की मंगलमयी भावना से अनुप्राणित रही है। भारतीय चिंतन माता भूमि पुत्रो एवं पृथिव्या आत्मवत् सर्वभूतेषु और वसुदेव कुटुंबकम के उदात्त और महनीय समुद्घोषों द्वारा वैश्विक चेतना का संवाहक रहा है। विश्ववारा भारतीय संस्कृति में सकल प्राणियों के कल्याण की कामना से भावित भारतीय महर्षियों को सदैव अभिष्ट रहा है कि कल्याणकारिणी सुमति से हम सभी हितकारी भाव से समग्र विश्व की मंगल कामना करें। देवानां भद्रा सुमतिर् ऋजुयन्तां देवानां रातिरभिनो निवर्तताम्। आदि काल से ही भारतीय जीवन दर्शन में मैत्री भाव पदे पदे परिलक्षित है। हितावह भाव से प्राणी मात्र को देखना ही भारतीय संस्कृति का अन्यतम समुत्कर्ष है। मित्रस्य चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे मित्रस्य चक्षुषा समीक्षा महि। संस्कृत वाङ्मय में मैत्री का विशद वर्णन अधिगत होता है। शुद्धात्माओं की मैत्री भिन्न हुआ करती है और सठ प्रकृति के व्यक्तियों की मैत्री दूसरी ही होती है। अन्यथे भी सौहार्दम भवेत् शुद्धान अंतरात्मनः प्रवर्तते अन्यथा वाणी साक्षो भद् चेतसः। खल मैत्री और सज्जन मैत्री को स्पष्ट करते हुए बताया गया है कि दुर्जनों और सज्जनों की मैत्री क्रमशः आरंभ में वृद्धिंगत और पश्चात क्षीयमाण तथा पूर्व में लघवी और बाद में सुदीर्घता को प्राप्त होकर दिवस के पूर्वार्ध और उत्तरार्ध की भांति हुआ करती है। इसलिए अज्ञात व्यक्तियों के साथ मैत्री विशेष परीक्षण के पश्चात ही करनी चाहिए, क्योंकि अपरिचित के साथ मैत्री वैर भाव में परिणत हो जाती है। महाकवि कालिदास ने कहा है, अज्ञात हृदयेषु अतः परीक्षा कर्तव्य विशेषात् संगतम रहे। जब दुष्यंत और शकुंतला का प्रणय होता है तब महर्षि कर्ण ने, जो कालिदास ने कहा है कि जिनके हृदय को हम नहीं जानते हैं उनसे मैत्री करने में विशेष परीक्षण होना चाहिए। आज केवल उस शकुंतला के लिए उपदेश नहीं है, हमारे युवक युवतियों के लिए भी ये प्रासंगिक है कि हमें किसी के साथ मैत्री करें तो उसको अच्छी तरह उसका परीक्षण करके ही करना चाहिए। इस प्रकार संस्कृत वाङ्मय में मैत्री के विषय में यत्र तत्र सर्वत्र विहित इंगित मनुष्यों को सज्जन मैत्री में प्रवृत्ति और खल मैत्री से निवृत्ति हेतु परम उपादेय है। इन आर्ष वचनों में आस्थावान होकर मानव दैनंदिन व्यवहार में सज्जन मैत्री से चारित्रिक समुत्कर्ष को प्राप्त कर सकता है। मनोर्भव के वैदिक समुद्घोष के आलोक में सत्य, त्याग, दान, न्यायशीलता, अभिवादनशीलता, पौरुष, परोपकार, सच्चारित्र्य, सेवा, दया, करुणापरायणता, संयम, औदार्य, निरभिमानिता, धन के प्रति निर्लिप्तता, आध्यात्मिक उन्नयन, विश्व बंधुत्व, प्राणी मात्र का कल्याण, आत्मोन्नति, निष्काम कर्म, भद्र विचार ग्रहण, विद्वत आदर, शिष्टाचरण, विनयादान आदि के रूप में जीवन की श्रेष्ठता के परम प्रतिष्ठापक महनीय स्वर्णिम सूत्र संस्कृत वाङ्मय में सुगुम्फित है। महर्षि वेदव्यास ने मानव के लिए
प्रज्ञा, कुलीनता, श्रुत, दम, पराक्रम, वाक संयम, दान और कृतज्ञता, इन 8 गुणों का संनिर्देश किया है। अष्टो गुणा पुरुषं दीपयन्ति, प्रज्ञा च कौल्यं च तमश्च, पराक्रमश्च बहुभाषिता च, दानम यथाशक्ति, कृतज्ञता च। महाभारत के उद्योग पर्व में वर्णन आया है। संस्कृत वाङ्मय में आचार्य परमो धर्म है। इस संनिर्देश पूर्वक आचारशीलता मानवता के श्रेष्ठ निक्षोपल के रूप में सुप्रतिष्ठित है। अनवद्य आचरण एवं शारीरिक शुद्धि से शूद्र भी देव, द्विज और तपस्वियों द्वारा सेवा करवाने का पात्र बन जाता है। आचारम अनवद्यत्वम शुचिरूपकर शरीरी च विशुद्धि करोति शूद्रम अपि देव द्विज तपस्वी परिकर्म योग्यम। नीति वाक्य अमृतम में ये आया है। आचार से ही कुलीनता, अकुलीनता, पवित्रता, अपवित्रता आदि का निर्धारण किया जाता है। कुलीनम कुलीनम व वीरम पुरुषमानिनम चारित्रम में व्याख्याति शुचिम व यदि वा शुचिम वाल्मीकि रामायण में वर्णन है। इसलिए सदैव चरित्र की रक्षा करनी चाहिए। वित्त आता जाता है, वित्त से क्षीण व्यक्ति क्षीण नहीं है, वृत्त से क्षीण वस्तुतः क्षीण है। वृत्तम यत्नेन संरक्षेत वित्तम एति च याति च अक्षीणो वित्ततः क्षीणो वृत्ततस्तु हतो हतः। महाभारत के उद्योग पर्व में वर्णन है। अनवरत शिष्टाचारानुपालन पालन पूर्वक कर्म प्रवृत्ति मानव का अंतःकरण अत्यंत निर्मल हो जाता है। इसके प्रतिकूल आचरण से मानव की संवेदनाएं लुप्त हो जाती है। मानव विवेकशील प्राणी है, अतः कहा गया कि ऊपर की ओर यान, नीचे की ओर यान नहीं। उद्यानम ते पुरुषम नावयानम। चारित्रिक समुत्कर्ष ने जहां दशरथ नंदन श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम के विरुद्ध से विलसित किया है, वहीं अमित वैभव और प्रतिभा होते हुए भी चारित्रिक दौर्बल्य के कारण रावण का आचरण गर्हणीय माना गया है। रामादिवत वर्तितव्यम न रावणादिवत। भारतीय संस्कृति चरित्र प्रधान है। आदि काव्य वाल्मीकि रामायण के प्रवर्तन का आधार ही चरित्र है। चारित्रेण च को युक्त है, सर्वभूतेषु को हित है। विद्वान कह समर्थश्च कश्च कह प्रियदर्शन है। इस प्रकार विविध वचनों से आचार विषय निर्देश से मानव जीवन के राजमार्ग को प्रशस्त करने हेतु अगणित सूत्र संस्कृत वाङ्मय में समुपलब्ध है। संस्कृत के नीति ग्रंथों में निज पर की संकीर्ण मानसिकता से ऊपर उठकर वसुदेव कुटुंबकम की उदात्त भावना का जीवन उपयोगी सुललित समुपदेश हितोपदेश में वर्णित है। अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानां तो वसुदेव कुटुंबकम। संस्कृत वाङ्मय में भद्राचरण के प्रति विशेष आग्रह है। आनौ भद्रा कृतवो यन्तु विश्वतः। भद्र विचारों को सब ओर से आने देने का भाव, हृदय का औदार्य आपादित करके सहिष्णुता का भाव उत्पन्न करता है। भारतीय संस्कृति कदापि अभद्र आचरण की अनुमति नहीं देती है। वेदोपदेश है कि मानव कदापि अभद्र आचरण में प्रवृत्त नहीं होवे। वह कानों से पत्र सुने, आंखों से पत्र देखे और अपने सुदृढ़ अंगों से विद्वानों के हितार्थ आजीवन कर्म परायण रहे। भद्रम कर्णे विश्रुणयाम देवा भद्रम पक्षे वाक्षिभिर्यत्रा स्थिरे रंगे स्तुष्टवान तनुभिर्विषये महि देवहितं यदायुः। भद्राचरण से दुराचरण बाधित होकर स्वेच्छाचारिता पर अंकुश लगने से विनयादान होता है। महाकवि कालिदास ने राजा दिलीप के प्रसंग में विनयशीलता के महात्म्य को उद्भावित करते हुए कहा है कि विनयादान रक्षण एवं पोषण के कारण राजा दिलीप ही प्रजा का यथार्थ पिता था। उनके पिता तो केवल जन्मदाता ही थे। प्रजानां विनयादानात् रक्षणात् भरणादपि स पिता पितरस्तासां केवलं जन्म हेतवः। संस्कृत वाङ्मय में सर्वत्र सत्य संभाषण के प्रति विशेष आग्रह परिलक्षित होता है, क्योंकि विजयश्री का मूल आधार ही सत्य है। मुंडकोपनिषद में कहा गया है, सत्यमेव जयते नानृतम। सत्य में ही सभी लोग सुप्रतिष्ठित है। सत्य लोकः प्रतिष्ठित है। सत्य से ही भूमि प्रतिष्ठित है। सत्येन उत्पन्ना भूमि। भारतीय संस्कृति में त्याग पूर्वक भोग को ही प्रशस्य माना गया है। ईशावास्योपनिषद कहता है, तेन त्यक्तेन भुंजिता अकर्ण्य कार्य काम्य कर्म तृष्णा आसक्ति स्वार्थ प्रमाद वासना अहंकार आदि के परित्याग से शांति प्राप्त होती है। श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्म फल त्यागात् शांति निरंतरम।
भारतीय संस्कृति में दान की समुज्वल अवधारणा आदिकाल से प्रचलित है। अथर्ववेद में 100 हाथों से अर्जन और सहस्त्र हाथों से विसर्जन का सुमधुर उपदेश है। सतहस्त समाहर सहस्त्रहस्त संकीर्ण। नीति वचनों से भी स्पष्ट है कि दान तुल्य कोई निधि नहीं है। दानेन तुल्यो निधिर नास्ति नान्य है। महाकवि भास ने भी दान के महात्म्य में कहा है कि काल पर्याय से शिक्षा क्षय को प्राप्त हो जाती है। सुबद्ध मूल वृक्ष गिर जाते हैं, जलाशयों का जल सूख जाता है, परंतु अग्नि में विहित हवन और प्रदत्त दान सदैव अविनिष्ट ही रहता है। शिक्षा क्षयं गच्छति काल पर्यायात् सुबद्ध मूला निपतन्ति पादपः जलस्थान गतं च शुष्यति हुतं च दत्तं तथैव तिष्ठति। मानव के परोपकारार्थ अस्थिदान करने वाले महर्षि दधी जी, सत्यपालक राजा हरिश्चंद्र, पूर्वजों के उद्धार हेतु परम पावनी गंगा को इस धरा पर लाने हेतु कृत संकल्प राजा भगीरथ, दुर्वासा ऋषि के प्रति कल्याण भावोपेत राजा अम्बरीश, सांसारिकता से असंपृक्त विदेह विरुद्ध से विलुषित राजर्षि जनक, दयालु उदार और पर दुःखातर राजा रंतिदेव, शरणागत कपोत रक्षक राजा शिवी, गोरक्षक राजा दिलीप, चारित्रिक सुदृढ़ता के सुप्रतीक स्वामी विवेकानंद और महर्षि दयानंद आदि अगणित चरित्रों के बल पर ही विश्व वरेण्य भारतीय संस्कृति में सर्वथा दिग्भ्रांत मानवों का पथ प्रदर्शन करने का अद्भुत सामर्थ्य है। अर्थापादजोपमा धन पैरों की धूलिवत है। कठोपनिषद में वर्णित पितृभक्त नचिकेता के आख्यान में धन की अयथार्थता के प्रसंग में निरूपित किया गया है कि मानव की अर्धेषणा कदापि परितुष्ट नहीं होती। न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्य है। धन के प्रति अत्याशक्ति से विरति हेतु उपनिषद साहित्य में मां हृदय कस्य धनम यह निर्देश है। न तेषु रमते बुधः श्रीमद् भगवद गीता के सुभाषित के अनुपालन पूर्वक सुधीजन अनित्य विषयों में आसक्त नहीं होते हैं। श्रेष्ठ जीवन निर्माणार्थ आचार की उपादेयता पर अत्यधिक बल देते हुए कहा गया है, आचारहीन को वेद भी पवित्र नहीं करते हैं। आचारहीनम न पतन्ति वेदाः। आचारहीन जीवन ग्रहणीय माना गया है, निंदा कुजीविका। नारी सम्मान के प्रसंग में महर्षि मनु ने नारी की प्रसन्नता और अप्रसन्नता पर ही कुल की प्रसन्नता अप्रसन्नता का प्रतिपादन किया है। स्त्रियां तु रोचमानायां सर्वं तद् रोचते कुलम तस्यां तु अरोचनायां रोचमानायां सर्वं एव न रोचते। जीवन में सात्विकता के संचारार्थ आहार शुद्धि अत्यावश्यक है, क्योंकि सत्व शुद्धि आहार शुद्धि पर ही निर्भर है। आहार शुद्धो सत्व शुद्धि सात्विक की सिद्धि साधन पर आश्रित होती है। अनैतिक अर्जन सुकृत विनाशक होकर न तो इह लोक में यशप्रद होता है और न ही परलोक में फलप्रद होता है। अन्यायोपार्जितेनेव द्रव्ये सुकृतं कृतं न कीर्तिरिह लोके च परलोके तत्फलम्। अनैतिक उपायों से अर्जित धन निंद्य है। अन्याय से अर्जित धन 10 वर्ष रहता है, 11वें वर्ष के प्रारंभ होते ही वह नष्ट होना प्रारंभ हो जाता है। अन्यायेनोपार्जितं द्रव्यं 10 वर्षाणि तिष्ठति प्राप्ते च 11 वर्षे समूलं तद् विनश्यति। चाणक्य नीति में वर्णन आया है। इस विषय में वेदोपदेश है कि हम अपने परिश्रम से नैतिक उपायों से अर्थार्जन करें। अतः अर्थार्जन में विशेष सजगता अपेक्षित है, क्योंकि पुण्यशीला लक्ष्मी गृह शोभा कारिणी और पापमयी लक्ष्मी शोभा विनाशिनी है। रमन्तां पुण्या लक्ष्मीरिया पापिस्तारिशनम। यही नहीं महर्षि वेदव्यास के अनुसार तो धर्मार्थ भी अनैतिक अर्जन श्रेयस्कर नहीं है। धर्मार्थम यस्य विद्येहा वरम तस्य निरीहता प्रक्षालनाधिपंकस्य श्रेयो न स्पर्शनं नृणाम्। इस प्रकार संस्कृत वाङ्मय में चारित्र्योत्थानार्थ अगणित स्वर्णिम सूत्र निबद्ध है, जिनके समाश्रयण से विश्व कल्याण की उदात्त और मनोहर संकल्पना को चरितार्थ किया जा सकता है। ये मैंने स्थालीपुलाक न्याय से कुछ सूत्र यहाँ आपके समक्ष उद्धृत किए हैं। ऐसे कितने ही अगणित सूत्र यहाँ पर विद्यमान है। इस पर अनुसंधान की आवश्यकता है। हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा का आधार ही हमारी संस्कृत भाषा है। हमारी संस्कृति में इन जीवन मूल्यों का, इन मानवीय मूल्यों का आदान करके हम पुनः भारत को विश्व गुरु की पदवी पर अभिषिक्त कर सकते हैं। इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।
इस सत्र में उपस्थित सभी विद्वज्जन आदरणीय डॉक्टर आशुतोष जी और तरुण सिंह जी और डॉक्टर अशोक मेहता जी, वैश्विक संदर्भ में भारतीय ज्ञान परंपरा, अंतर्दृष्टि और नवाचार। भारतीय ज्ञान परंपरा इस विश्व वट वृक्ष की जड़ें हैं और जितना हम इन जड़ों को सींचते जाएंगे उतना ही वैश्विक वट वृक्ष फिर से पुष्पित, पल्लवित और नए रूप में युगानुकूल विभिन्न प्रकार की परंपराओं, नीतियों, पद्धतियों और इसके विकास के रूप में विकसित होता रहेगा। ये वहाँ शुरू हो गया, तो इसको हम जैसे मैं आगे बोलूँ, आगे की ओर है ना, आगे पे आगे से आपको शुरू होता रहेगा। दिख रहा। बहुत संक्षेप में मैं इस विषय को स्पष्ट करना चाहता हूँ। वैसे तो ये लगभग 6 घंटे का विषय है जिसमें प्रायोगिक भी किया जाता है और प्राचीन काल में जिस तरह की साधनाएं होती है उसके ऊपर भी विभिन्न प्रकार की गतिविधियां होती है, लेकिन समग्र भारतीय विद्या का जो मूल आधार है वह प्राण विद्या है। क्यों? क्योंकि हमारे प्राचीन काल में जितने भी विद्या के केंद्र थे उनमें सर्वप्रथम प्रत्येक विद्यार्थी को जिस विद्या का अभ्यास कराया जाता था, जो अनिवार्य होती थी सबके लिए, वह प्राण विद्या थी। बहुत गहराई से चिंतन करेंगे तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में जो विषय आया है, थोड़ा सा जब हम अगली स्लाइड में चलते हैं समझने के लिए, मूल आधार प्राण विद्या है। हम आज विद्यार्थी को उसकी प्राण विद्या का विकास किए बिना बाकी सब सिखा रहे हैं। इसके कारण से वह उस उच्च स्तर को प्राप्त नहीं कर पा रहा, क्योंकि उसके अंदर जो क्षमताएं, जो सामर्थ्य उत्पन्न होना चाहिए था, उसको विकसित किए बिना हम उसके ऊपर बहुत सारी चीजें थोप रहे हैं। उसका परिणाम ये हो रहा है कि वो वर्तमान शिक्षा से दूर जाना चाहता है और भाग जाना चाहता है। उसको जो वर्तमान शिक्षा पद्धति है वो बिल्कुल, जिसको तथाकथित आजकल के पाश्चात्य लोग कहते हैं कि मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित करके हमने इसका निर्माण किया है, वो बिल्कुल गलत है। क्योंकि हमारे ऋषि मुनियों ने कहा कि सब कुछ प्राप्त करना है तो सबसे पहले प्रत्येक विद्यार्थी को प्राण विद्या का ज्ञान दीजिए। प्राण का अर्थ होता है प्रवहति इति प्राणः, और प्राण की 3 स्थितियां होती है। इसका मैं विस्तार नहीं कर रहा हूं। गति, लय और दिशा, ये तीनों प्राण ठीक करता है मनुष्य को। और गति ठीक होती है, उसको लयबद्धता आती है, उसको ठीक से दिशा मिल जाती है। और प्राण जब उसके अंदर पूरी समग्रता के साथ इस त्रिकोण में प्रवाहित होता है, तब प्राण का शिखर ऊर्ध्वगामी होकर के उस मनुष्य की ऊर्जा को संकेंद्रित करके बहुत बड़ी विस्फोटक ऊर्जा उसके अंदर उत्पन्न कर देता है। सामान्य से दिखने वाला मनुष्य ऊर्जावान होकर के बड़े बड़े चमत्कारिक परिवर्तन करने के सामर्थ्य को प्राप्त करके आगे बढ़ने लगता है। लेकिन इस प्राण विद्या के प्रयोग हमारे पूर्वजों ने किए, उसके प्रमुख आधार कुछ थे जो सामान्य रूप से मैं बताना चाहता हूं। दैनिक व्यवहार और साधना के जो प्रयोग हुए उसमें, योग में 16 विद्याएं हमारे यहाँ सिखाई जाती थी उसमें, और 64 कला, ये सब वर्णन आ चुका है, इसलिए मैं इनके बारे में विस्तार से नहीं बता रहा हूं कि ये जो बातें होती थी वो प्राण विद्या के सिखाने के बाद दैनिक व्यवहार कैसा होना चाहिए, साधना कौन कौन सी करनी है, उसके बाद उसको अष्टांग योग के सारे अंगों का बहुत अच्छी तरह से प्रशिक्षण दिया जाता था। उसके बाद 16 विद्याएं और 64 कलाएं उसको सिखाई जाती थी। क्योंकि वो जब सारा सामर्थ्य, सारा कौशल, जीवन जीने का ढंग प्राप्त कर लेता था,
तो स्वयं प्रेरणा से वो सीखने की और अधिगम की ओर आगे बढ़ने लग जाता था, बजाय कि आजकल जो डंडे के जोर पर भय से, दंड से और विभिन्न प्रकार के तरीकों से जो हम प्रयास कर रहे हैं विद्यार्थियों को आगे बढ़ाने के लिए। और प्राचीन काल में कितना गहरा मनोविज्ञान था कि जब प्राण विद्या के बाद सबसे पहले दैनिक व्यवहार कैसा होना चाहिए चराचर जगत के प्रति, उसका ये सिखाया जाता था। आश्चर्य करेंगे आप कि वस्त्रों के साथ कैसा व्यवहार करना, दरवाजे को खोल रहा है तो कैसा व्यवहार करना, वो चल रहा है तो कदम कैसे उठाना, वो पुस्तकें और रख रहा है तो कैसे रखना, वो लिख रहा है तो लिखते समय होश में किस तरह से रहना, ये सारी बातें उसको दैनिक व्यवहार में प्राण विद्या के माध्यम से सिखाई जाती थी। तो प्राण विज्ञान सभी विद्याओं का आधार केंद्र है, जड़ है। अब आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा, जो हमारे यहाँ उल्लेख आया है प्राण सूक्त के अंदर अथर्ववेद। मैं ज्यादा इस पर चर्चा नहीं करते हुए आप केवल संक्षेप में इस तरफ बढ़िए, अपनी दृष्टि को लेकर जाइए और स्वयं पढ़िए। जब भारतीय ज्ञान परंपरा की बात आ रही है तो अथर्ववेद को के निकट जाइए, नहीं मिल रहा है तो लेकर आइए। और जब वो आते हैं तो दुनिया में अथर्ववेद में जो प्राण सूक्त के अंदर जितनी वैज्ञानिक व्याख्या प्राण की गई है वो अभूतपूर्व है और आश्चर्यजनक है। संक्षेप में उन्होंने कहा जो प्राण है वो ईश्वर है। आप ईश्वर को देखना चाहते हैं तो प्राण के साथ जुड़ जाइए, आप अपने आप ईश्वर के साथ जुड़ जाएंगे। ईश्वर के साथ हम कनेक्ट होना चाहते हैं। लोग पूछते हैं ना ईश्वर कहाँ है, कहाँ मिलेगा, तो प्राण के साथ जैसे ही हम गति, लय और दिशा को ठीक करते हैं, ईश्वर हमारे चारों तरफ घूमते हुए हमें अनुभूत होता है। फिर उन्होंने, जिसको आजकल का विज्ञान कहता है कि ये जो द्युलोक है वो प्राण का आधार कहाँ है, सूर्य है प्राण का आधार। और जो प्राण का आधार सूर्य है तो उसकी किरणें जब आती है, सूर्य अपनी किरणों को, प्राण को पृथ्वी पर भेजता है किरणों के माध्यम से, और फिर वहीं से वही किरणें फिर रूपांतरित होकर के वही प्राण वृष्टि के रूप में परिवर्तित होकर के फिर से पृथ्वी के ऊपर आता है, और वही प्राण प्रवाहित होते हुए वायु रूप के अंदर भी प्रवाहित होता रहता है। इससे बड़ा विज्ञान क्या होगा जो अथर्ववेद में बताया गया है। और उन्होंने कहा वही प्राण जब शरीर में आता है तो 5 प्रकार से काम करता है। और उन्होंने कहा कि जो प्राण है ना, औषधियों की भी औषधि है। और अभी जो कोरोना काल आया और जब सारे जो जितना भी प्रकार का प्रदूषण था वो एकदम रुक गया, उसके बाद एक सैनिक मुझे मिले और कई लोग ऐसे मिले, उन्होंने कहा कि हमारे ऐसे अनेक प्रकार की जो एलर्जी की बीमारियां थी जिसके कारण से हम छींकें आ रही है, जुकाम हो जाता है, ये हो जाता है, वो आ जाता है, खांसी हो जाती है, हमें आश्चर्य हुआ कि बिना दवा के हम ठीक कैसे हो। बाद में उनको कहा कि हम इसी शहर में रहते थे लेकिन इतना प्रदूषण था और कोरोना के काल के कारण से जब ये जो प्राणवायु इसके अंदर जो प्रवाह में हमने इतना प्रदूषित कर दिया प्राण को भी, इस प्राणवायु को भी, कि जो औषधि का काम करती थी वो एक तरह से हमारे लिए औषधि ही नहीं रह गई। इसलिए प्राण ऐसा कौन सा आहार है जो हम हर क्षण लेते हैं, बाकी आहार का समय अलग अलग होगा। आश्चर्य करेंगे, हर क्षण हम श्वास और प्रश्वास के द्वारा जिस प्राणवायु को अंदर ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, इसको इस ब्रह्मांड का सर्वोत्तम आहार कहा गया है। और इस आहार को जितना संतुलित और व्यवस्थित कर दिया जाए, व्यक्ति को उतना ही समग्र स्वास्थ्य की प्राप्ति होगी। और कुछ विषय ऐसे जुड़ गए जो आज विज्ञान जा रहा है उस तरफ। उन्होंने कहा प्राण ही मृत्यु है, रोग है और बल भी है। कैसे? गांव का अनपढ़ आदमी भी कहता है इसके प्राण पखेरु उड़ गए। सामान्य रूप से हम देखते तो गांव के, जिसको हम तथाकथित अनपढ़ कह रहे हैं, तथाकथित अनपढ़ शिक्षित व्यक्ति, जिसको अक्षर ज्ञान नहीं लेकिन बहुत शिक्षित है वो, वह व्यक्ति कहता प्राण पखेरु उड़ गए। प्राण के जैसे ही प्राण छूटता है ये देह एक तरह से मूर्त हो जाती है और नश्वर देह बिल्कुल निश्चेतन होकर के गिर जाती है। अब संक्षेप में आगे बढ़ते हैं तो कुछ उपनिषद है हमारे और उनका उल्लेख हुआ है, लेकिन हमारे जो वेद है
उसका मैं विस्तार से नहीं कर रहा हूं। आप थोड़ा ध्यान करिए, ऋग्वेद की तरफ जाएंगे आप, और ऋग्वेद में जाएंगे तो 10वें मंडल के 90वें सूक्त का 13वां मंत्र जब पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि ये जो परमेश्वरी प्राण शक्ति है, नाम दिया इसको, देखिए ध्यान से थोड़ा अनुसंधान करने की आवश्यकता है। ये जो प्राण शक्ति ये परमेश्वरीय है, यानी परमात्मा का ही एक हिस्सा है, और इस परमेश्वरीय प्राण शक्ति से ही इस वायु की उत्पत्ति हुई है। इसकी दिशा में जब जो बहुत सारे साइंस के लोग हैं उनको जाना चाहिए इस तरफ, और उन्होंने कहा प्राण ही आयु है। हम आयु को काल से गणना कर रहे हैं कि इतने वर्ष का हो गया मैं, इतने साल का हो गया, ये आयु नहीं है। आयु है प्राण। प्राण की गति, दिशा और लय जितनी व्यवस्थित होती है उसी से आयु का निर्धारण होता है। आयु का निर्धारण काल गणना से नहीं होता है कि मैं 50 साल 60 साल, ये गणना तो केवल हमारी गणितीय गणनाएं हैं। लेकिन जब हम जाएंगे कि प्राण ही आयु है, इस पर विस्तार करने की आवश्यकता है। लेकिन एक आगे की बात आई, उन्होंने कहा अशु की नीति, ऋग्वेद के 10वें मंडल के 19वें सूक्त के 6ठे मंत्र में कहा गया है, इसको अशु की नीति कहा गया है। इस प्राण को क्या है? ये प्राण धारण करने की एक पद्धति और मेथड क्या है ये बताया गया। आश्चर्य की बात है, हमें प्राण की पद्धति ही नहीं आती है ग्रह धारण करने की। अभी चीन के अंदर रिसर्च हुआ केवल ब्रीदिंग सिस्टम पे, उन्होंने कहा ब्रीदिंग सिस्टम, ये अशु की नीति है। जब भी हम क्रोध में होते हैं, भय में होते हैं और वासना की स्थिति में जाते हैं, तब हमारे प्राण को धारण करने की पद्धति कैसे हो जाती है? उखड़ जाता है श्वास गुस्से में कहीं भी। तो ऋग्वेद कहता है ये नहीं है, आप उल्टा बोल रहे हैं। प्राण के अस्त व्यस्त होने के कारण से आप क्रोधित हो रहे हैं, प्राण के अव्यवस्थित होने के कारण से आप वासना में जा रहे हैं, नहीं कि वासना में जाने से प्राण उखड़ रहा है। ये गलत बात है। अशु की नीति कहती है जब आपके ब्रीदिंग सिस्टम का रिदम दाएं बाएं होता है, अव्यवस्थित होता है, तब आप उन चीजों की तरफ खींचते चले जाते हैं, क्रोध में चले जाते हैं, वासना में चले जाते हैं, भय में चले जाते हैं। और इस अशु की नीति को जब आप पूर्ण रूप से नियंत्रित कर देते हैं, तब आश्चर्यजनक परिणाम आता है। चीन के शोधकर्ता बताते हैं कि वह व्यक्ति हर परिस्थिति में परम आनंद में रहना सीख लेता है, क्योंकि उसने ब्रीदिंग सिस्टम को बहुत बैलेंस कर लिया है, संतुलित। ये अशु की नीति कहलाती है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए यजुर्वेद के अंदर प्राण विद्या के बारे में क्या कहा गया? जब भारतीय ज्ञान परंपरा की बात कर रहे हैं तो संक्षेप में मैंने इस विषय को रखा है। और जब हम आगे बढ़ते हैं तब प्राण का संवर्धन, यजुर्वेद आ गया सामने, प्राण का संवर्धन लिखा हुआ है, प्राणस्त्य, हाँ जी बिल्कुल। ये मंत्र आप जब पढ़ रहे हैं यजुर्वेद के 6ठे अध्याय के 15वां ये है, वो कह रहे हैं तेरे जो प्राण है ना, इसको संवर्धन करो। जब आप बहुत डीप ब्रीथिंग करते हैं और हर क्षण जब पूरा ध्यान हमारा श्वास पे होता है, तब धीरे धीरे श्वास यानी प्राण का संवर्धन होता है। और संवर्धन करने का मतलब इतना ही नहीं है, श्वास प्रश्वास लेना संवर्धन नहीं है, ये तो बैलेंस है, ब्रीदिंग ये रिदम हो गया। लेकिन ऐसे हिमालय पर जाकर के जब आप वही प्रक्रिया करते हैं तो वो प्राण का संवर्धन 100% संवर्धन होता है। और वही आप जब बंद कमरे में और जहां कार्बन डाइऑक्साइड अन्य गैसें भरी हुई है, तब वही प्राण संवर्धन नहीं, उसका अपवर्धन होना शुरू हो जाता है, वो नीचे की ओर चला जाता है। और आगे ये जो प्राण, इसको एक नाम दिया गया ऐन्द्र प्राण। जो प्राण आत्मा की शक्ति से प्रेरित होता है उसको ऐन्द्र प्राण कहा गया। वो सेंटर में रहता है, केंद्र का प्राण है, वही स्वामी है। जितने भी बाकी हमारे पंच प्राण और उपप्राण प्रभावित होते हैं। इसलिए हम थोड़ा जब इसको जानते और समझते हैं तो ये विषय हमारे लिए अध्ययन का, हम थोड़ा अध्ययन करेंगे। थोड़ा 2-3 मिनट के अंदर इसको पूरा करते हैं, 2 मिनट में। ये जो प्राण है इसको हमने सामवेद में गायन के रूप में कहा है कि प्राण को जब आप व्यवस्थित करते हैं तो उसी से संगीत उत्पन्न होना शुरू हो जाता है।
और जिन्होंने लता मंगेशकर जी पे शोध किया गया कि आपका गला इतना सुंदर कैसे हो गया, आपने इतना गाया अच्छा कैसे, उन्होंने कहा कि मेरा गला सुंदर नहीं है, मेरे लिए ये जो गायन है ये परमात्मा की भक्ति है, और उस भक्ति और उस प्राण से मैं जब इतनी गहराई से जुड़कर जब इसको गाते हूँ तो गाते समय ही मैं ऐसा महसूस करती हूँ कि मैं उस परमेश्वरीय सत्य की ही साधना कर रही हूँ, और जब ये स्थिति आती है तब प्राण गायन बन जाता है। और प्रश्न उपनिषदों की बात करते हैं संक्षेप में। प्रश्नोपनिषद के अंदर ये जो वर्तमान विज्ञान की बात कर रहे हैं इसके दो भागों में बांटा गया है इसको पूरे को। जो प्राण दिन में तेजस्वी और ऊर्ध्वगामी होकर के हमें प्रेरित करता है उसको प्राण कहा है, वही जब रात्रि में विपरीत दिशा में बहने लगता है तो उसको हमने रई नाम दिया है, जिसको पॉजिटिव और नेगेटिव, प्लस और माइनस आजकल का विज्ञान कहता है। प्लस यानी प्राण, माइनस यानी रई। इन दो तत्वों से सारी सृष्टि चल रही है। उसी को उन्होंने आदित्य अर्थात बहुत उष्ण, चंद्रमा अर्थात शीतलता, पुरुष और स्त्री और प्रकृति रही, और पॉजिटिव और नेगेटिव, इस तरह के दो भागों में प्रश्न इस प्राण को विभाजित करते हुए प्रश्नों पर उपनिषद दिखाई देती है। ऐसे ही अन्य उपनिषदों में इसका उल्लेख किया गया है। मैं उनकी चर्चा नहीं करते हुए आगे बढ़ते हैं और सीधे आते हैं प्राण आधारित भारतीय संस्कृति के विषय को समझते हैं। थोड़ा आगे बढ़िए। जब आगे आते हैं, इससे भी आगे, मैं प्रायोगिक तौर पे इन तीन विषयों को थोड़ा आगे विस्तार संक्षेप में ले जाना चाहते हैं। ये प्राण अभी वर्तमान में तो बहुत बड़ा विस्तार है, लेकिन मैं केवल तीन संक्षिप्त बिंदुओं की चर्चा कर रहा हूं। दिनचर्या, वास्तुशास्त्र और सगुन शास्त्र, इसके बारे में आने वाले समय में चर्चा होनी चाहिए। और सबसे पहले हम दिनचर्या में क्या होता है, दिनचर्या में प्राण का क्या महत्व है, आगे बढ़ेंगे। अगली स्लाइड में संक्षेप में इसकी चर्चा करते हैं और इसको थोड़ा समझिए। दिनचर्या का जो संबंध है सूर्य से प्राप्त जो प्राण की मात्रा और गुणों के आधार पर ही तय होकर हमारी दिनचर्या बनती है। जागरण जब हम कहते हैं, हमारे पूर्वज ब्रह्म वेला में जागना चाहिए, या जब वो आहार के लिए बोलते हैं, कहते हैं कि सुबह का भोजन सूर्योदय के 4 घंटे बाद तक ग्रहण कर लो और शाम का भोजन सूर्यास्त से पहले ग्रहण कर लेना चाहिए। तब प्राण के प्रभाव की मात्रा और गुणात्मकता, प्राण जो है वो बहुत विकसित कौन से क्षणों में है, संधि काल में जब हम देखते हैं कि प्राण का प्रभाव ब्रह्म मुहूर्त सूर्योदय से पहले बहुत सकारात्मक और बहुत ऊर्ध्वगामी होता है। उस समय अगर जाग करके देखेंगे हम तो प्राण का प्रवाह हमारे अंदर कितना गहरा होगा। इसलिए आहार के समय भी कब करना, जब प्राण की गुण और मात्रा व्यवस्थित और प्रभावी हो। हमारे यहाँ संधियां बताई गई है, और इसलिए संध्या काल, हमारे 3 प्रकार की संध्या होती है, उसमें संधि काल से जोड़ा गया है। लेकिन जो 2 संधियां है ना, जिसमें प्राण की स्थिति रहती है कैसी, उस समय हमारे यहाँ कहा गया कि प्रथम जो संधि काल होता है सूर्योदय के पूर्व का, वो भ्रमण, योगासन और व्यायाम साधनाओं के लिए वो प्राण बहुत ताकत और शक्ति और हमें उस ओर ले जाता है। और दूसरी ओर जब बात करते हैं सायं संध्या की, तो आप सब जानते हैं, उसमें मैं विस्तार से नहीं बता रहा हूं। दूसरा शयन, इस समय रई, प्राण रई में बदल करके हमें विश्रांति की ओर ले जाता है। एक प्राण जो हमें गहरा विश्राम प्रदान करता है, वो इस संध्या काल के बाद उसकी का आरंभ होता है। एक आगे की स्लाइड में हम देख रहे हैं कि ये जो 10 दिशाएं हैं, इनके बारे में हमें विस्तार से अध्ययन करना चाहिए। मैं केवल इतना बता रहा हूं कि वास्तुशास्त्र में जो दिशाओं का महत्व है वो सूर्य से प्राप्त प्राणों की मात्रा, घनत्व और गुणों के कारण से दिशाओं के नाम रखे गए हैं। और उस दिशा में हमें कब जाना चाहिए, तो पूर्व दिशा है ना, वो पूर्व, हम ये बोलते हैं ना सूर्य पूर्व की उदय होता है, ये गलत बात है। सूर्य पूर्व की तरफ उदय नहीं होता है, सूर्य उदय से पहले ही प्रकाश और उससे भी प्राण का उदय सूर्य से पहले हो जाता है, इसलिए सूर्य से पहले प्राण आ जाता है, इसलिए उसका नाम पूर्व कहा गया। पूर्व का अर्थ होता पहले ही। कौन आ गया है सूर्य से पहले?
प्राण आ गया। इसी तरह से 10 दिशाओं के नाम रखे गए हैं। ऐसे ही आगे बढ़ेंगे हम, जिसमें वास्तुशास्त्र के बारे में बताया गया है। आगे की स्लाइड में देखते हैं हम, एक मंदिर का निर्माण कैसे किया जाता है। आप देखेंगे कि मनुष्य साधना करता है, उसके सप्त चक्र होते हैं, उसमें प्राण क्रमशः प्रवाहित होकर के उसको आगे बढ़ाता है। उसको सुला दीजिए, आप लेटा दीजिए। उसी के अनुसार भारत के सभी मंदिरों का, नगरों का, सबका निर्माण होता है। और इस पद्धति से अगर मंदिरों का निर्माण किया जाता है, क्योंकि मंदिरों को भी हमने एक जीवंत अस्तित्व माना है, हमारे लिए वो पत्थर के बने हुए भवन नहीं है। इसलिए वास्तु पुरुष का जब विस्तार हम देखते हैं तो ये प्राण का प्रवाह जिस तरह से गमन होता है, उसी के अनुसार भवन का निर्माण हमारे यहाँ किया गया है। अंत में आगे की स्लाइड की तरफ बढ़िए। अभी प्राण प्रतिष्ठा हुई थी रामलला जी की, तो प्राण प्रतिष्ठा एक शब्द आपने सुना था, और प्रतिष्ठा द्वादशी हम आयोजित कर रहे हैं। तो प्राण प्रतिष्ठा के दिन जब मूर्ति के विग्रह के रूप में रूपांतरित होते हुए पूरे विश्व ने देखा था, और देख करके प्रस्तर मूर्ति जो पत्थर की मूर्ति है, मंत्र आदि द्वारा जब साक्षात बालक राम के प्राण आवाहित और सुप्रतिष्ठित किए गए, तो सबकी आंखों ने कैमरों के सम्मुख भगवत विग्रह प्राणमान होता है। शिल्पकार जो अरुण योगीराज थे, उन्होंने कहा कि जो मैंने बनाई वो मूर्ति नहीं है, इसकी आंखें और इसका स्वरूप जो मैं आगे होकर के दर्शन कर रहा हूं, ये मुझे लग नहीं रहा कि मेरे जैसे व्यक्ति की बनाई हुई प्रतिमा है। यह है प्राण की ताकत और शक्ति, जो कितना गहरा जीवंत कर देती है मूर्तियों को। शकुन शास्त्र हमने सुना हुआ, तो हमारे अभी हम कहते हैं अंधविश्वास है, क्या है ये, अरे ये कुछ हो गया, वो हो गया, ये सारी बातें होती है। मैं जब विस्तार से भी शोध हो रहा है, आप देखिए हमारे पूर्वजों ने जो शकुन शास्त्र बनाए, वो अंधविश्वास और अंधश्रद्धाएं ऐसा जो नाम दिया गया वो बिल्कुल नहीं है। प्राण विद्या के अध्येता ऋषियों ने इसको बहुत गहराई से अनुभव किया, और अनुभव करने के आधार पर उन्होंने वनस्पति हो, प्राणी जगत हो, संपूर्ण सृष्टि हो, इसको विभाजित किया। अभी कभी हम देखते हैं ना, बिल्ली रास्ता काट गई, तो हमारे यहाँ उसको तामसिक प्राणी माना गया है। और एक वैज्ञानिक जिसने वनस्पति में अध्ययन किया उसके, और उसने एक पत्ता था उसका, वो जो ऊर्जा है उसके और एक की प्रतिमा स्कैन की, उसके बाद उसका एक टुकड़ा काट दिया, और काटने के बाद तुरंत थोड़ी देर बाद उसी समय उसकी फिर से उसने फोटो खींची, स्कैन किया, तो वही जो आया उसके कुछ समय पहले जो पूरे का चित्र लिया था वही स्कैनिंग हुई। बाद में उसने कहा कि पत्ता टूटने के बाद भी कुछ कालखंड तक उस क्षेत्र में भी उसकी प्राण प्रवाहित होती रहती है, इसलिए उसके स्कैन में तोड़ने के बाद भी वो हिस्सा आया। इसलिए उन्होंने कहा कि वो जो प्राणी गुजरता है ना हमारे सामने से, रास्ता काट गई, तो तमस जिस गुण है और तमस ऊर्जा को लेकर के चल रहा है, अगर हम उससे गुजर जाएंगे तो वो प्राण, तामसिक प्राण का प्रवाह हमारे जीवन पर होगा, और हमारी मनस्थिति और हम जो सोच के गए उस पर उल्टा प्रभाव पड़ सकता है। इस तरह के कई शकुन शास्त्र ऐसे बनाए गए हैं। और अंत में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में जो भारतीय ज्ञान परंपरा के अंत में उसको चलते हैं, अंतिम स्लाइड, और उसमें कहा गया है कि अब हम जीवन को प्राणवान कैसे बनाएं हमारे सब बच्चों का। इसलिए हमारे कई साधनाएं हैं, उसमें हमारे प्राणायाम की परंपरा पतंजलि योग सूत्र में जाएंगे, या उपनिषद और वेदों में जाएंगे, या योग वशिष्ठ में जाएंगे। विभिन्न प्रकार के ऋषियों के द्वारा खोजी हुई साधनाएं हैं। तो एक महात्मा बुद्ध के काल में जो एक साधना विकसित हुई, वो भी प्राण पर आधारित है, उसको हमने विपश्यना कहा है। और जैन मत में भी इस प्राण को बहुत बड़ा महत्व दिया गया, और उन्होंने इस प्राण को ठीक करने की विधियां बताई। उसमें से सबसे अच्छी विधि जैन मत में बताई गई, उसको प्रेक्षा ध्यान कहा जाता है। ऐसे हजारों ध्यान की पद्धतियां जीवन को प्राणवान बनाने के लिए विकसित की जा चुकी है। हम जीवन को प्राणवान बना करके कितने हम ऊर्जावान हो सकते हैं। एक सामान्य से व्यक्ति में भी हम विराट शक्तियां उत्पन्न कर सकते हैं, और आने वाले समय में प्रत्येक विद्यालय में इस प्राण विद्या के ऊपर बहुत बड़े अनुसंधान की और क्रियान्वयन की आवश्यकता है। अगर ये कर पाए तो हम बाकी बातों में अच्छे वैज्ञानिक, अच्छे दुनिया में जितने श्रेष्ठ लोग चाहिए,
इस प्राण विद्या के माध्यम से पूरे विश्व को दे सकेंगे। इसलिए हम उस प्राण यात्रा की तरफ चलें और जीवन को प्राणवान बनाएं। धन्यवाद। किसी का कोई प्रश्न हो? ठीक है सर।